Hello everyone, welcome to Pro Trader Talks. Pro Trader Talks में आप सभी का स्वागत है. This video is going to be extremely important if you are one such trader or investor जो आपकी investing trading activity को profit में बदलना चाहता है. Yes, my friends, I'm going to talk about top 10 mistakes that all of us have made. All these mistakes are something that I have made at some point of time in my career as well. तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो सकता है. Ensure that you watch it until the end. तो आज बात करेंगे उन top 10 गलतियों की जो हमेशा कर बैठते हैं. Right, so let's get started. Take your notepad and a pen and make good notes and ensure that ये top 10 की जो list है आप हमेशा अपने vision board पे अपने सामने रखिए. आपके सामने रहेगी तो जीवित रहेगी and again आपको याद दिलाते रहेगी कि these are the things you do not have to do. So what are the number one mistake? Let us start by saying सबसे पहले तो हम ये गलती करते हैं that we try to learn all. We try to learn everything there is about the stock market. हमें हर एक सिस्टम जाननी होती है, हर एक स्ट्रैटेजी जाननी होती है और सिस्टम और स्ट्रैटेजी के बारे में हर एक इंडिकेटर को भी जानना होता है. RSI सीख लिया, ADX सीख लिया, गैन, इलियट, whatever there is to learn, because हमें लगता है कि जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा हम कर पाएंगे. But the fact is कि eventually पूरी learning journey के बाद, this is my experience, you will have to unlearn 90% of it later to make real progress. Instead, why not focus on the key principles? ऐसी जो थोड़ी key principles होती है जो market movements को drive करती है, price action को drive करती है, उन पे focus करके उन्हीं से पैसा कमाना जरूरी होता है. So why not do that? That is the first thing. दूसरी गलती जो हम हमेशा करते हैं वो है not focusing. We do not focus on what works for you and what doesn't. ये तो हम focus ही नहीं करते. Understand that हर एक के लिए अलग अलग system और risk काम करता है. आपके लिए जो सिस्टम काम करेगी शायद मेरे लिए वो नहीं करेगी. आई नीड अ मोर कंजर्वेटिव सिस्टम. एज मैं बहुत बार बताती हूँ कि व्हेन आई लर्न टू ट्रेड फ्रॉम विशाल, इट वाज नेवर, ही टॉट मी ऑल द सिस्टम्स एंड स्ट्रैटेजीज दैट ही वाज डूइंग इन द वे ही वाज डूइंग इट. लेकिन मैं मेरे करियर में वो सक्सेसफुली कभी नहीं कर पाई क्योंकि मेरी रिस्क एपेटाइट अलग थी, मेरा स्वभाव अलग था. वो हिसाब से मुझे अपने लिए ज़्यादा कंजर्वेटिव सिस्टम्स डिजाइन करने पड़े. आई यूज्ड टू ट्रेड डिफरेंटली. दो आई यूज्ड टू ट्रेड विथ हिम, वी कुड नेवर हैव टू पीपल ट्रेडिंग इन द सेम अकाउंट विद द सेम स्ट्रैटेजी. तो The first thing is you need to understand your risk profile. आपकी risk profile क्या है? आपकी strengths और weaknesses क्या है? क्या आप fast market movement में बड़े डर जाते हैं? क्या आप ज़्यादा conservative करना prefer करते हैं? क्या आप intraday trading में ज़्यादा active हो सकते हैं? क्या लंबे समय तक रोक के रखना आपको नहीं जमता है? What is it for you? Find that and then उसके basis पे अपनी system और method develop कीजिए. Based on your real-time trial and errors. Use these trial and errors to develop your own system and method. और फिर देखिए कितने स्मूथली आप पूरी ट्रेडिंग को सिस्टमेटाइज कर दोगे और एक बिजनेस कैसे रन करोगे. राइट. द थर्ड मिस्टेक दैट वी मेक इज we underestimate ourselves. हम अपने आप को underestimate करते हैं. We underestimate what we can achieve. क्योंकि इसमें हमारी गलती नहीं है. It is human nature to doubt oneself. हम सब humans की nature है, right? But we are capable much more than we can think. कि आपको लगता है कि आप इतना ही कर सकते हो, आप उससे 100 गुना ज़्यादा कर सकते हो. That's an inner thing. This is psychology, right? So if you want to be a great trader, first आपको ये believe करना है कि आपके अंदर वो है. बहुत सारी बार that's the reason we give so much importance to psychology more than trading systems. क्योंकि हमारी जो identity होती है, if we have this identity and we believe that we can be great traders, that's all we need. Everything else falls in place. बहुत सारे issues जो लोग हमारे पिछले 15 सालों से हम लोगों को सिखाते हैं trading and investing कैसे successfully करके financial freedom generate करनी है. And so many people who come to us, they are excellent at executing systems. They're very good with risk management. लेकिन कई सारी बार यहीं पर अटक जाते हैं कि वो अपने दिमाग में अपने आप को अंडरएस्टिमेट कर देते हैं और ये आइडेंटिटी ही नहीं क्रिएट कर पाते अपने लिए कि वो कुछ कर सकते हैं. एंड देयर इज समथिंग दैट माय फ्रेंड्स, दे लूज इट ऑल. सो आस्क योरसेल्फ, आर यू अंडरएस्टिमेटिंग योरसेल्फ? क्या आप अपने मन में, क्या आप अपने लिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर की आइडेंटिटी बना सकते हैं या नहीं? द फोर्थ मिस्टेक दैट वी एंड अप डूइंग, एंड दिस इज सो ऑफन, इज ओवर ऑप्टिमाइजिंग. हम हमारी ट्रेडिंग सिस्टम को ऑप्टिमाइज करते ही रहते हैं. हमें लगता है कहीं ना कहीं कोई होली ग्रेल है जो हमारे लिए वेट करती है और वही एंडिवर में रहते हैं. कभी मुझे वो परफेक्ट सिस्टम मिले,
that perfect system that I can use forever in my life. My friends, that doesn't work. The goal is to find a system that works for you. The goal is not to find the holy grail. हम minimize कर सकते हैं risk को और हम minimize कर सकते हैं हमारे losses को, लेकिन हम ये risk और losses को पूरी तरह eliminate नहीं कर सकते. That's not what the intention is. So stop over optimizing your trading system. जो है उसी से trade कीजिए और realistic expectation से trade कीजिए. That leads me to the fifth mistake that we make is we do not have realistic expectations. हम हमारे जो पूरी ट्रेडिंग प्रोसेस है उससे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखते. मोस्ट पीपल एक्सपेक्ट टू मेक अ फॉर्च्यून ओवरनाइट. एक परफेक्ट सिस्टम मिल गई, होली ग्रेल मिल गई, अब तो क्या चाहिए, अब तो देख ये ट्रेड में मैं आर या पार हो जाऊंगा, मेरी पूरी फाइनेंसेस को पलटी कर दूंगा. दिस इज द कॉमन वर्ड्स दैट वी हियर पीपल से, व्हिच इज सिंपली नॉट पॉसिबल माय फ्रेंड्स. हमें फोकस ओवरनाइट पे नहीं करना है. ओवरनाइट रिचेस इज नॉट द गोल. वी नीड टू फोकस इंस्टेड ऑन डेवलपिंग कंसिस्टेंसी. पहले कंसिस्टेंसी डेवलप कीजिए और the rest of it will follow on its own. That is the fifth mistake that we make. And the next mistake, and this is the one जहाँ मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग falter करते हैं, is to not maintain a trading journal. ट्रेडिंग जर्नल लोग मेंटेन नहीं करते. मतलब जो भी ट्रेड्स करते हैं, जो भी सिस्टम के ऊपर या व्हाटएवर इट इज दैट यू ट्रेड. सपोज आपने कोई ट्रेड ले लिया गट फील के ऊपर, आपने कोई ट्रेड ले लिया मूविंग एवरेज सिस्टम के ऊपर, आपने फिर नेक्स्ट ट्रेड ले लिया आरएसआई के ऊपर, उसके बाद कैंडलस्टिक. ये सारे वेरियस रीजंस की वजह से ट्रेड लेते रहते हैं और एक जगह पे जर्नल नहीं करते. यू आर नॉट एबल टू एनालाइज योर एंटायर ट्रेडिंग जर्नी. आपको पता नहीं है कि आपने कौन सा सिस्टम पे कौन से कितने का रिस्क लिया है, कितने का लॉस हुआ है, कौन सी सिस्टम आपके लिए चल रही है, नहीं चल रही है, आपको क्या ट्वीक करना है सिस्टम में. हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज इट बेटर, हाउ कैन यू मेक इट बेटर. Tracking your trades is so important, my friends, because it helps you analyze your performance and helps you improve your results. अगर जर्नल मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, कैसे पता चलेगा. रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो है इट क्रिएट्स वन कांस्टेंट. ऐसा लगता है ना जीवन में कांस्टेंट होता है और वेरिएबल होता है. कांस्टेंट जो होता है वो बदलता नहीं है, वेरिएबल जो होता है बदलता रहता है. सो योर ट्रेडिंग जर्नल इज योर constant thing in life which you can refer to again and you can uncover these hidden patterns. जो भी आपके सिस्टम में, जो भी आपके उसमें परफॉर्मेंस में जो भी पैटर्न्स बनती रहती है उसको आप देख सकते हो आपकी ट्रेडिंग जर्नल से. क्या क्या गलतियां आप करते हो ये सब देख सकते हो. जब हम ट्रेड के अंदर होते हैं माय फ्रेंड्स हम नहीं देख पाते. वी नीड टू गेट आउट ऑफ द ट्रेड, विच मीन्स ट्रेड हो गया, जर्नल मेंटेन की, पूरा हफ्ता चला गया, वीकेंड पे जर्नल खोल के बैठिए. वीकेंड में मार्केट जब नहीं होते हैं वी आर फार मोर फोकस्ड, राइट, क्योंकि मार्केट के टाइम पे वी आर इमोशन, द टाइम द इमोशंस गो हाई, इंटेलिजेंस रन्स लो. सो वी डू नॉट हैव टू एनालाइज द जर्नल व्हेन वी आर इमोशनल. वीकेंड पे जब कूल और काम टेम्परामेंट होता है खोल के देखते हैं जर्नल, फिर देखते हैं अच्छा ये सिस्टम में मैंने ऐसे किया, ये मेरी पैटर्न बन गई है कि मैं प्रॉफिट बुकिंग पे डर जाता हूँ और जल्दी प्रॉफिट बुक कर देता हूँ. फॉर इंस्टेंस वो पैटर्न आपको कब पता चलेगी, जब आप ट्रेडिंग जर्नल एनालाइज करोगे तब पता चलेगी, राइट. सो दैट इज वन थिंग. और एक द नेक्स्ट मिस्टेक दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, वो आपको सिर्फ आपकी ट्रेडिंग जर्नल ही बता सकती है और वो मिस्टेक है टू ओवर ट्रेड. हम ज्यादा ओवर ट्रेड कर देते हैं बिकॉज ट्रेडिंग जब हम कम समय ट्रेड करते हैं, क्वालिटी ट्रेड देते हैं, दैट हेल्प्स अस बिकम मोर सिलेक्टिव विद आवर एंट्रीज एंड एग्जिट्स. इट हेल्प्स अस इम्प्रूव आवर विन रेट. हमारी जो क्वालिटी ऑफ ट्रेड है वो बेटर हो जाती है. जब हम ओवर ट्रेड करते हैं तो ऑल काइंड ऑफ ट्रेडिंग एरर्स कम इन. रिवेंज ट्रेड कर बैठते हैं, लो कॉन्फिडेंस में ट्रेड कर बैठते हैं, फिजिकली फिट नहीं होते फिर भी ट्रेड करते रहते हैं. ये सारी ट्रेड क्वांटिटी बनाती है लेकिन क्वालिटी इफेक्ट करती है. माय फ्रेंड्स, वी ऑलवेज नीड टू सिलेक्ट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. let the trades come to you. do not like कि रास्ते में नहीं जाना है, शांति से अपनी सिस्टम लगा के बैठिए. Wait for the trades to come to you and not the other way around, you going to the trades, right? Always have this approach. And the next one I'm talking about is a huge one, जहाँ हम ये एक चीज को रिस्पेक्ट नहीं करते, हम पूरी ट्रेडिंग की गेम को खो देते हैं. And that thing, my friends, is your risk. When we do not respect risk, that's the end of it. For no amount of these exotic trading systems, nothing works. This is the most important aspect of trading.
You need to know how much you're willing to risk on each trade and you need to have a clear exit plan. उसके बिना it is not possible. You can't make it up as you go and expect consistency. कि चलो मैंने ट्रेड ले लिया, मैं देखता हूँ आगे जहाँ मुझे लगेगा मैं छोड़ दूंगा, मतलब I'll trigger my stop loss और I'll book my profit. You can't do that. अगर आप ये करते रहोगे एक बार और फिर एक्सपेक्ट करोगे कि मेरी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में कंसिस्टेंट पैटर्न बन पाए या कंसिस्टेंसी आ पाए, that is just not possible. So risk is something you need to respect all the time. Risk is supreme. इसलिए हम ट्रेडिंग जर्नी पे किसी नोवाइज ट्रेडर को अगर बताना है कि एक नोवाइज ट्रेडर से प्रो ट्रेडर कैसे बने, हमारा जो प्रोग्राम है एनीबॉडी कैन ट्रेड, वहाँ हम सिखाते हैं. एंड जो पाथ होता है वो पाथ में सबसे पहले हम उल्टा जाते हैं कि यू नीड टू हैव द राइट माइंडसेट टू ट्रेड, और उसके बाद हम रिस्क पे बात करते हैं, उसके बाद सिस्टम्स और स्ट्रैटेजीज और फिर टूल्स के ऊपर बात करते हैं. वी गो द रिवर्स वे बिकॉज इन दैट इज द क्रोनोलॉजी इन विच दे आर इम्पॉर्टेंट. बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका माइंडसेट और उसके बाद नेक्स्ट ज़रूरी है आपका रिस्क. Right? That is important. The 9th mistake that we end up making, and that is with all of them, is to keep hitting yourself, keep kicking yourself when you're down. जब हमें पता है कि हमने गलती कर दी है, ये सब गड़बड़ हो गई है, फिर भी अपने आप को मारते रहते हैं. Losing trades, my friends, are common. आपको लॉस हुआ उसका मतलब ये नहीं है कि आपने इनमें से कोई गलती कर दी. यस, उसकी वजह से हो सकता है, बट लॉस के बहुत सारे कारण हो सकती है. एंड देयर इज एन एंटायर कैटेगरी ऑफ लॉस जिसे हम बताते हैं हैप्पी लॉस. जो हम छोटे रिस्क पे बाहर निकल जाते हैं, वी एक्सेप्ट, हमारी हार मान के हम बोलते हैं चलो मेरी गलती हो गई, माई एनालिसिस वाज रॉन्ग एंड दिस इज द पॉइंट व्हेन आई गेट आउट ऑफ द मार्केट, उसे हैप्पी लॉस बताते हैं. एंड हैप्पी लॉसेस आर कॉमन. इफ यू कीप बीटिंग योरसेल्फ अप ओवर दीज लॉसेस, इट विल ओनली आपकी जो एबिलिटी है टू मेक रैशनल डिसीजंस उसको ही हैम्पर करेगा. वो आप रैशनल डिसीजन ले ही नहीं पाओगे आगे जाके. एंड दैट इज द बिगेस्ट लॉस यू मेक, माय फ्रेंड्स. सो यू नीड टू बी नाइसर व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ. आप अपने लवर फ्रेंड से कैसे बात करोगे? अरे तू तो ऐसा ही है, तुझे कुछ समझ में नहीं आता है. डू यू टॉक टू योर लवर फ्रेंड्स लाइक दिस? नो. देन व्हाई डू वी टॉक टू आवर ओन सेल्फ लाइक दिस? राइट? ठीक है, गलती हो गई, लॉस हो गया, दैट्स ओके. राइट डाउन इन योर ट्रेडिंग जर्नल, राइट डाउन योर मिस्टेक आल्सो कि नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस. दैट्स ऑल. अपना सेल्फ एस्टीम बचा के रखना आपके हाथ में है. ऐसा लगेगा इसका ट्रेडिंग के साथ क्या कनेक्शन है माय फ्रेंड्स, लेकिन मार्केट साइकोलॉजी, योर साइकोलॉजी इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन प्रेडिक्टिंग योर ट्रेडिंग सक्सेस. राइट? एंड नंबर 10, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन माय फ्रेंड्स, आई सेड इट फॉर द लास्ट, वो है प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हम. वी डू नॉट फॉलो द प्रोसेस. इफ यू आर नॉट एंजॉइंग द जर्नी, इफ यू आर नॉट एंजॉइंग द प्रोसेस, ये पूरी प्रोसेस को अगर हम एंजॉय नहीं कर पाते, यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट टू योर डेस्टिनेशन. क्योंकि ऐसा नहीं है कि चलो होके कर गए, इसको समय लगता है. ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, जैसे हम बताते हैं कि कोई भी डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, ऐसा नहीं कि रातों रात बन जाता है. वी हैव टू स्टडी टू गेट देयर. राइट? वी नीड टू नो कि हाउ टू गेट देयर. बहुत सालों की मेहनत लगती है, विद्या लगती है, और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग भी ऐसी ही चीज़ है. सबके बस की बात नहीं है. सिर्फ सबके बस की बात हो सकती है अगर सब पढ़ाई करना चाहे तो. सो एंजॉय द होल प्रोसेस. इफ यू नॉट एंजॉइंग, तो फिर डेस्टिनेशन पे पहुंच के भी क्या फ़ायदा है. सो ट्रेडिंग शुड बी एक्साइटिंग. इट शुड नॉट बी अ चोर कि चलो करके ख़त्म कर दिया. It should be something that you look forward to have mastery upon. That's it. तो जितने भी ups और downs आपके जीवन में हो रहे हैं ट्रेडिंग जर्नी में, उसे embrace कीजिए. ये पूरी जर्नी का हिस्सा है. Learn to love the challenges. मेरी फेवरेट अफर्मेशन जो मैं बहुत दोहराती हूँ is honor the struggle. ये पूरा जो स्ट्रगल है उसे ऑनर कीजिए. कहीं ना कहीं यू विल राइज विक्टोरियस, और फिर आप जाके देखेंगे अपने पास्ट को, देखेंगे यार इतनी पूरी जर्नी चली गई, मेरे जीवन के इतने सुनहरे साल चले गए, मैंने एंजॉय नहीं किया. एंजॉय द होल प्रोसेस. बिकॉज ट्रेडर और इन्वेस्टर सिर्फ मार्केट को एनालाइज करना, मार्केट में सक्सेसफुली पैसा बनाना नहीं सीखता है, अपने आप के ऊपर भी काबू पाना सीखता है. वी लर्न अ लॉट अबाउट ईगो, वी लर्न अ लॉट अबाउट सरेंडर. ये सारी चीज़ें जो हम सीखते हैं, मार्केट ही तो सिखाता है हमें. Right? And that's why I say a good trader also becomes a good human being, and you become a better version of yourself when you try to trade and invest. So ये जो 10 मिस्टेक है माय फ्रेंड्स, अगर हमने सीख लिया कि इनसे कैसे बच के चले, जितना हो सके उतना कैसे अवॉइड करें. मैं जानती हूँ ये सारी मिस्टेक हम कभी पूरी मात्रा में अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके उतना अवॉइड करेंगे, यू विल बी बेटर ऑफ इन द लॉन्ग रन. Remember, it's not about finding the perfect system or not finding the perfect strategy. It's all about finding what works for you and building on that. जो आपके लिए काम करता है उसके ऊपर बिल्ड कीजिए, कैपिटलाइज कीजिए, so that हम
एक्सपेरिमेंट करना, वो सब और स्क्रू अप करना, इन सबसे डरे नहीं। हमें पता है कि हम हमारा रास्ता वापस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। सो गो थ्रू दिस लिस्ट वंस अगेन, पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आपकी ट्रेडिंग डेस्क पे जब बैठे हो आपको पता चले कि यार मुझे रिस्क को इग्नोर नहीं करना है, मुझे प्रोसेस को एंजॉय करना है, मुझे लर्निंग सब कुछ लर्न करने की ट्राई नहीं करनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड देन सी हाउ योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग टेक्स अ टर्न फॉर द बेटर. Thank you so much for listening, guys. I wish you joy and abundance in all you do.